اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے جس پہ بات کروں گا۔ عید کی چھٹیوں میں دشمن نے، جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن ہیں نا، انہوں نے کیا پروگرام بنایا تھا؟ کراچی میں مسرور ایئر بیس کو، ہوائی جہازوں کے، آرمی کے فوجی اڈے کو، مسرور ایئر بیس کو تباہ کرنے کا، اللہ نہ کرے، اور جتنے بھی وہاں کھڑے جہاز تھے ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کا، اور اس کے بعد عالمی سطح پہ یہ تاثر دینے کا پلان تھا کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے، اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اب بھی عقل ہے قوم یوتھ کو کہ سنبھل جاؤ، دیکھ لو، سمجھو کہ دشمن کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ فیض حمید کا فیض ہے جو آج تک قوم بھگت رہی ہے، یہ عمران خان کا فیض ہے جو قوم اب تک بھگت رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنا عرصہ اللہ نہ کرے اور بھگتیں گے۔ اس پہ ایک بات ہوگی، کھل کے بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے صرف ایک اپیل ہے، دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ اس میں اگر اتنا سا سچ ہوگا تو اتنا ہی بتایا جائے گا، اس میں جھوٹ شامل کر کے اتنا نہیں کیا جائے گا۔ بھلا ویوز ملیں یا نہ ملیں، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرا کام ہے عوام تک سچ پہنچانا، اور وہ میں انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ اس میں صدر آتا ہے کوئی پرواہ نہیں، وزیر اعظم آتا ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھی سرکاری ادارے کا چیف آتا ہے، جج آتا ہے، مجسٹریٹ آتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، میرا کام ہے حق سچ دکھانا، اور وہ انشاءاللہ میں دکھاتا رہوں گا۔ تو نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور کوشش کریں کہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ چینل کو گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اب تو میں نے 10 سے 15 منٹ تک محدود کر دیا ہے، 1 گھنٹہ پہلے میں بناتا تھا، اب 15 منٹ پہ آ گیا ہوں، اب تو کم از کم دیکھ لیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور سٹارٹنگ کے جو 10 منٹ ہوتے ہیں نا وہی عام ہوتے ہیں، اس میں دیکھا کریں، اور اس کے بعد اس کو آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، اس میں پھر ویڈیو وائرل ہوتی ہے جا کے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں کس طریقے سے چاروں طرف سے یہ گریٹر اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہے، کیونکہ پورے ورلڈ میں پاکستان ہی واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے۔ سب سے پہلے تمام کافر قوتیں مل کے یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے تباہ کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو انڈیا کے، کیونکہ وہ بھی کافروں کا ملک ہے، اس کے ماتحت کر دیا جائے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کافر۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھیں کس طریقے سے یہ اندر تک بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے پکڑے گئے ہیں بندے۔ یہ ہماری ISI کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے اندر سے پکڑے ہیں لوگوں کو جن کا یہ منصوبہ تھا، جو ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک باہر سے حملہ آور ہونا تھا اور ایک اندر سے۔ اور منصوبہ کیا تھا؟ یہ جو کانفرنس نہیں ہوئی ہے پچھلے یہ 2 دن پہلے
2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूरी दुनिया से अमीर तरीन लोग आए थे, इन्वेस्टर आए थे और ठीक ठाक मायदे करके गए हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाजी है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और सबसे बढ़ के हमारे आर्मी चीफ सैयद हाफिज सैयद आसम मनीर साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया। इसमें सबसे ज़्यादा किरदार पाक आर्मी का है कि उन्होंने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को महफूज बनाया, रेंजर्स ने और पाक आर्मी ने और पुलिस ने भी। सब अदारों का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, सब ने मिलके महफूज किया। तो इस कॉन्फ्रेंस को सुपताश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ख़राब करने के लिए ये गलीज़ मंसूबा बनाया गया था कि उन इन्वेस्टरों के पास ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है, इसके एयरपोर्ट गैर महफूज हैं, तो पीछे क्या रह जाता है। तो वो अल्लाह ने करम किया। उनका मंसूबा ये था, उनको इतने पैसे दिए गए थे, जहन वाश किए गए थे कि उन्होंने हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाना, जहाज़ों को नुकसान पहुंचाना, और उस वक्त तक जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती इनको उलझाए रखना। अब वो जिंदा पकड़े गए हैं, अब इंशाल्लाह इनका पूरे का पूरा नेटवर्क पकड़ा जाएगा। इनका नेटवर्क जाके कहाँ मिलता है? BLA से मिलता है। ये बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग जो है ना, ये सबसे बड़े गद्दार हैं, इनके साथ मिलता है। और ये गद्दार अख्तर मैंगल जैसे और महमूद अचकजई जैसे गद्दारों के साथ मिलता है, इमरान जैसे गद्दारों के साथ मिलता है, मारंग लांगू जैसे गद्दारों के साथ मिलता है। तो अल्लाह ने इतनी करम नवाजी की है, आगे भी इंशाअल्लाह वो करम करेगा। मैंने पहले क्या कहा था कि हाफिज सैयद आसम मनीर हमें वो तोहफा अल्लाह की तरफ से मिला है जो अली और फातिमा की औलाद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी। और ये जो है ना, जिसने फातिमा की औलाद को गाली दी, इसने मुझे गाली दी। ये बाकायदा हदीस मौजूद है, ये मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, तिरमिजी में भी है, और बहुत सारी किताबों में मौजूद है, जिसमें और सब मुतफक है इस हदीस पे कि नबी पाक का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आपका फरमान है कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी। सब नहीं, सिर्फ फातिमा की औलाद। वैसे तो अली की तकरीबन 28 के करीब औलादें हैं, उसमें मर्द और औरतें शामिल कर ली जाएं तो, लेकिन उनमें से वो औलाद सैयद है जो कि फातिमा के जिस्म से है। अब मेरे साथ एक बंदा बहस कर रहा था, अहले तशी का बंदा था। वो कहता है हाजी साहब ये कैसे हो सकता है कि अली की औलाद और सैयद ना हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम हजरत सुल्तान बहू को तो मानते हो ना कि वो अली की औलाद है। कहता हाँ जी मानते हैं, वो अली की औलाद है। मैंने कहा उसने अपनी किताब में लिखा है, चोटी का वली, उसने अपनी किताब में लिखा है औलाद अली की हूं लेकिन सैयद नहीं, आवान हूं, क्योंकि मैं फातिमा के जिस्म से नहीं हूं। जो फातिमा के जिस्म से है वो सैयद है। अब तो ईंट उठाओ तो नीचे से सैयद निकल आता है। सुच्चा खरा सैयद अल्लाह ने हमें दिया है, हाफिज सैयद आसम मनीर। कैसे? ये अली और फातिमा की औलाद है और शाह शम्स तबरेज की नस्ल है। ये किसी भी, कोई भी यूथड़ किसी भी मुल्तान के बंदे से पूछ ले कि उन्होंने मुल्तान में सूरज को सवा नेजे पे बुला लिया था। तो अगर उनके पास अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई थी कि वो सूरज को आसमान से जमीन पे ला सकें, तो ये भी तो उसी की नस्ल है, इसको भी अल्लाह ने बेहिसाब ताकतें दी हुई हैं। उन्हीं ताकतों को इस्तेमाल करके ये देख ले मुल्क को बड़ी तेजी के साथ तरक्की की तरफ ले जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह लेके जाएगा। तो
बाकी देखें किस तरीके से बॉर्डरों पे इस वक्त 5 बॉर्डरों पे 5 जगहों पे पाकिस्तान आर्मी को उलझाया गया है उनका मोराल डाउन करने के लिए। एक अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अब वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। जब मुसलमान मुसलमान को मारता है, ये तो हम तो अपने दिफा के लिए मार रहे हैं ना उनको, वो हमारी गवर्नमेंट के, हमारी रियासत के खिलाफ हथियार उठा के हमसे जंग करने को आ गए हैं। अल्लाह का फरमान है, कुरान में भी, हदीसों में भी, बहुत सारी इस्लामी कुतब में भी मौजूद है कि रियासत के, भला रियासत जितनी भी खराब हो, रियासत के खिलाफ कोई मुसलमान को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया कि वो हथियार उठाए, चाहे कौम यूथड़ है, चाहे अफगानी है, चाहे कोई भी है, उसको अल्लाह ने इख्तियार ही नहीं दिया कि इस्लामी हुकूमत के खिलाफ वो हथियार उठाए। वो अगर बुरी है तो उसको तब्दील कर दिया जाए, लेकिन हथियार के साथ नहीं, वोट के साथ। तो आप देखें, ये कह रहे हैं जी हमारे वोट इन्होंने ले लिए, ये जाली हुकूमत है। ये खुद जाली हैं, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, ये खुद जाली हैं। इनको वोट कोई, कौन सा काम किया इन्होंने 12 सालों में केपीके में जो इनको 2/3 अक्सरियत मिल गई? कैसे मिल गई? कोई एक मंसूबा बता दे, एक कोई स्कूल बनाया हो, कोई रोड बनाया हो, कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई कारखाना लगाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, सिवाय इसके कि वो अपनी वो अस्पताल शौकत खानम के नाम से धड़ाधड़ बना रहा है सरकारी जमीनों पे और नोट कमा रहा है, बस उसका बिजनेस है ये। वहाँ कोई गरीबों का इलाज नहीं होता है। अगर कोई गरीब साबित कर दे कि वहाँ पे गरीबों का इलाज फ्री होता है तो मैं जो जुर्माना के वो देने को तैयार हूँ। नहीं होता है वहाँ पे। मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। मैंने अपने सके मामू की बेटी को लेके लाहौर गया था, हालांकि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियों कारखानों में जाके हर जगह पे जाके मैंने चंदा जमा किया था। मेरे पास रसीदें पड़ी हुई हैं, सबूत पड़े हुए, कोई यूथड़ लेना चाहे तो ले सकता है। एक एक बंदे ने, औरतों ने अपने जेवर तक उसमें दे दिए थे। अब मालिक बन के इसकी बहनें और ये बैठा हुआ है, इसका टोटल उसमें 1.5 करोड़ लगा हुआ है। 70 करोड़ में वो अस्पताल बना था, 50 करोड़ दिया था मियाँ शरीफ ने, नवाज शरीफ के वालिद साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। 50 करोड़ उसने दिया था, 10 करोड़ ख्वाजा साद रफीक ने दिया था, 10 करोड़ वो उसने ये जो नायब वजीर आजम है क्या असागडार ने दिया था। तब जाके 70 करोड़ पूरा हुआ था। और जो इसने पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा किया था वो कुछ खुद खा गया था, कुछ जो है ना मशीनरी मंगवा ली थी, वो भी बगैर टैक्स के। सरकारी जमीन नवाज शरीफ ने दी और मशीनरी बगैर टैक्स के नवाज शरीफ ने मंगवाई। किराया परचेज इसने की, किराया तक नवाज शरीफ ने दिया था। ये आसान फरामोश बंदा है। एक पहले, सबसे पहले अपने मौसम को डंगता है, ये वो सांप है। सबसे पहले इसने किसको डंगा था? ये जो जहाज बार बार के ला रहा था। और उसके बाद जितने भी पीटीआई में कोई एक वर्कर बता दे कि जो इसके साथ शामिल हो, जिसने पीटीआई बनाने में किरदार अदा किया हो, ये इस्तेमाल करता है, करके टिश्यू की तरफ फेंक देता है। जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ। जहांगीर तरीन को इसने इस्तेमाल किया और अलीम खान को इसने इस्तेमाल किया, उनके पैसे खाता रहा। और उसके बाद जब उनसे अमीर मिल गए तो उनको छोड़ दिया। जब इसराइल से फंडिंग आना शुरू हो गई, इंडिया से फंडिंग आना शुरू हो गई, अभी तो वो केस बाकी है, कौम यूथड़, ये जिंदा बाहर नहीं आ सकेगा इंशाअल्लाह। इसने तो लिख के माफीनामा दिया हुआ है, गवर्नमेंट के पास मौजूद है कि मुझे माफ कर दें और मुझे सऊदिया, भला सऊदिया ही भिजवा दें, लेकिन यहां से मुझे जेल से निकालें। ये कह रहे हैं डट के खड़ा। और उसकी लद निकली हुई है, वो खत्म हो चुका हुआ है। जेल काटना आसान नहीं होता है, जेल मर्द काटते हैं, जड़े नहीं। वो नवाज शरीफ था जिसने जेल काटी, वो मरियम नवाज थी जिसने जेल काटी, वो हमजा शहबाज था जिसने 2 साल लगातार जेल काटी। एक भी किसी बंदे को ना नवाज शरीफ ने कहा, ना शहबाज शरीफ ने कहा, ना हमजा शहबाज ने कहा,
ना ही इसके किसी और मरियम नवाज किसी ने भी नहीं कहा था कि अवाम बाहर निकले और इमरान खान की हुकूमत के साथ लड़े और हमें रिहाई करवाए। नवाज शरीफ ने खुद कहा, अवाम इकट्ठी हो गई थी जब वो इंग्लैंड से आया, बीवी बीमारी की हालत में छोड़ के आया, बेटी को साथ लेके गिरफ्तारी के लिए। किस जिल्लत में इस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया। ये जलील इंसान आज खुद दूसरों को जलील करता था, आज खुद जलील हो रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह होगा। तो अब देखें किस तरीके से उसने बजाय तैश दिलाने के लोगों को, नवाज शरीफ ने उनको खिताब में कहा कि भाई कोई जेल मुश्किल नहीं है मेरे लिए काटना, आप लोग खुद मुझे जेल तक छोड़ के आए। अवाम खुद गई है उसको जेल तक छोड़ के आई थी। ये कौम यूथड़ को भी पता है इस चीज का, इसकी तरह रो नहीं रहे थे जिसको वो फ्रॉडिया नंबर 1 है। देखें 3 महीने से प्लस्तर, वो 6 महीने से प्लस्तर टांग के, अच्छा कपड़ों के ऊपर प्लस्तर किया हुआ था, नीचे पैंट पहनी ऊपर प्लस्तर करके घर जाता प्लस्तर कटवा लेता था। ये इतना बड़ा फ्रॉडिया है और चेयर से उठ ही नहीं रहा था। कौन सा प्लस्तर है जो 6 महीने पूरी दुनिया के डॉक्टर हैरान थे। और शौकत खाना में कौन सा हड्डियों का इलाज होता है, हड्डी टूट गई है तो गोली लगी है तो गोली का इलाज, वो सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं गया था कि इसका फ्रॉड खुल जाना था। ये जैसे कौम यूथड़ गलीज घटिया तरीन नस्ल है, गंदी तरीन नस्ल है। अल्लाह या तो इनको हिदायत दे या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इनको इनकी नस्लों समेत तबाह बर्बाद करे। ये मुल्क के गद्दार है, इनके लिए मुल्क कोई हैसियत नहीं है। इनका बाप भी इमरान खान है, इनकी माँ भी इमरान खान है, इनका दादा भी इमरान खान है, इनका परदादा भी इमरान खान है। ये पठानों समेत सबकी कौम यूथड़ की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक पंजाबी को पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में अपना बाप तस्लीम किया है। शर्म और गैरत उनमें है ही नहीं। ये वो नस्ल है जो गंदी तरीन नस्ल है जिसको यूथड़ कहते हैं। सब पठान नहीं, उसमें बड़े बड़े गैरतमंद पठान भी हैं जो अपनी जान इज्जत के लिए दे देते हैं, जो दूसरों की इज्जतों को अपनी इज्जत समझते हैं, जो दूसरों की माँ बहनों की इज्जत करना अपना कल्चर समझते हैं। एक सच्चा खरा पठान जो होता है ना, वो दुश्मन की माँ बहन बेटी पे को भी अपना समझता है, उस पर गलीज पोस्टें नहीं करता है। ये गंदी नस्ल जो है ना, ये इमरान ने तैयार की है और ये वो गंदी नस्ल है जो एक सैयद पे गलीज जुमले लगाते हैं, पोस्टें लगाते हैं। और ये काफर हो चुके हैं, इस्लाम से निकल चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस मुस्लिम में भी मौजूद है, बुखारी में भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है और बहुत सारी हदीसों में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आपने फरमाया था कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी। जिसने फातिमा की औलाद को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी वो फौरन इस्लाम से निकल गया, काफर हो गया। तो अब इन लोगों के वो भी निकाह भी टूट चुके हुए हैं। इनको चाहिए सिद्ध के दिल से माफी मांगे, दोबारा कलमा पढ़ें, दोबारा निकाह करें। अल्लाह गफूर और रहीम है, वो माफ कर देगा, वो आपने हकूक माफ करेगा। सैयद से माफी नहीं, सैयद की तौहीन करना की माफी नहीं। अल्लाह इनको हिदायत दे अगर हिदायत के काबिल है, वरना अल्लाह इन सब को तबाह बर्बाद करे। चाहे वो आर्मी में मौजूद है, चाहे अदलिया में है, चाहे जज है, वकील है, जर्नैल है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, गद्दार हैं, सरदार हैं, जो भी हैं, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, इनकी नस्लों समेत, आमीन। इसके साथ ही देखें किस तरीके से अब भी कम से कम सोच लो कि पूरी दुनिया में किस तरीके से मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। नस्ल कशी उनकी खत्म की जा रही है और यूथड़ कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान आर्मी क्यों नहीं जाती है। भाई सबसे नजदीक तो सऊदी अरब है, वो क्यों नहीं जाता है। हम तो पहले से ही उलझे हुए हैं 5 जगहों पे, अफगानिस्तान के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, ये क्या नाम कौम यूथड़ के खिलाफ, और क्या नाम है गद्दारों के खिलाफ। हमारी आर्मी तो पहले 5 बॉर्डरों पे लड़ रही है, 5 माजों पे लड़ रही है। वो भेजे ना अपनी फौज, और एक फतवा सिर्फ जारी करवा दे सऊदी अरब, खाना काबा के इमाम से, मस्जिद नबी के इमाम से,
اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا سے کس طرح لوگ نکلتے ہیں، نہیں جاری کروائے گا کیونکہ اندر سے وہ ان کے ساتھی ہے، اردن بھی اس کا ساتھی۔ اب ان کو سب سے پہلے جب خطرہ پیدا ہوا تو اب ان کو وہ ہوا کہ چین کے ساتھ بھاگ گئے ہیں، چین کی طرف۔ یہ وہ غدار ممالک ہیں، اس میں مصر بھی شامل ہے، غداروں کا ٹولہ ہے، سعودیہ شامل ہے، اس میں اردن شامل ہے، اس میں قطر شامل ہے، یہ سب غدار ہیں۔ دبئی بھی سب سے بڑا غدار ہے، سعودیہ سمیت دبئی سمیت سب غدار ہیں۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ ملک نہیں، عوام نہیں، عوام خلاف ہیں۔ یہ جو وہاں پہ ٹراؤٹ بیٹھے ہوئے نا امریکہ کے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا آرمی چیف آیا جو امریکہ کا غلام نہیں ہے، نبی پاک کا غلام ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، نبی پاک کی نسل ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کا ساتھ دو، ہمارے ملک کا ساتھ دو۔ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔